سوری خاندار ڈاکومنٹس نکس لیورس دود اخ ؤری علاج کران لیورس آز تم سری نگر نیون کاغذ نین سارے نار آتش زدگی کی واردات سے آج پھر سے 2 کنبے بے گھر ہو گئے. تصویریں ہی بیان کر رہی ہے کہ آگ کتنی ہولناک تھی اور اس ہولناک آگ نے چند منٹوں میں ان کے آشیانے کو راکھ کے ڈیر میں بدل دیا اور یہ فیملی خون کے آنسو رو رہی ہے. آج ان کے سر پہ چھت نہیں ہے اور جو اس گھر کا اونر تھا, جو اس گھر کا مالک تھا, چلانے والا تھا, وہ اسپیشلی ایبلڈ ہے. اس کا بازو بچپن سے کام نہیں کرتا ہے اور ایک ہاتھ سے اس نے آج تک اس گھر کو بنایا تھا, لیکن بدقسمتی سے کل آتش زدگی کی واردات سے ان کا پورا آشیانہ جل کر خاکستر ہو گیا. ارے دیدی تھی تو میں کیا مسئلہ تو مسلس گو سر یہ کہ اتس گیس گو لیک ہس نار کر پہ درگاہ کے کرک یتس آو نا کہین تہ مسا بچے بچہ اکہ میں نیک امس مے لیورس دود امس گو اخ ؤری امس لگ رۄپیس 2 لچھ 2.5 لچھ دود مے 3 لچھن مے سون زیور سہ دود مے سورے یم مے کاغذ ژٕ وٕچھ میٲنۍ فایلن یہ وٕچھ میٲنِس سۄنس کیٛاہ گوٚو مسا چھِ مےٚ یم 2 لچھ مے زیادٕ بیٚیہِ لوگُم نہٕ کِہیٖنۍ کوتاہ سون دود لگ 3 لچھن مے سون ملازم اوسا گھرس مز بچہ پران بس پران مے ژٕ وٕچھ ییٚمِس لیورس پرابلم ییٚمِس مے لیورس پرابلم أمِس لگ برابر ؤرِیَس کیا لیورس کی بچہ یہ پیشنٹ أمِس ہیپیٹائٹس یہ سری نگر نیون بس نقصان کوتا گو یہ گھر کت کن بنیا گھرس مزا زینن وول کا کمان وول بس پرائیویٹ سکولس گا کران تت 5 ساسن پہ نوکری پتہ تمے 5 ساس انا جمع کر گھرس کا چیز انا خاندارس رۄپیہِ دہ زینس تو شال کٲم کران پتہ پیٖت کورمُت جمع ات لوگ آز نار یہ 10 لچھن ہُنٛد جاداد روزان کتھ راتس کت بسان بہت ہمسائن کن وت پہ کس کس تمہ جائز گئی فائر سروس آئے نا جلدی فائر سروس آئے مگر یہ روڈ پرابلم گئی 2 گھر بے گھر کس تمہ جائے کت گھو یت مکانس مجھے 2 گھر بے بارن ملازم کان ملازم دکان کہین یہ نوتوان امس یہ بیوان دکانس بیوان یہ أکس سۭتۍ گا بیاکھ پنجاب اس 5-10 ورین جمع کورمت سہ سورے تر لوگ نار خدا نہ خاصہ کہاں جانی نقصان جانی نقصان بچائے بال بچائے مسا. تو ناظرین یہاں پہ آنکھیں نم ہو جاتی ہے, دل تار ہو جاتا ہے جب کوئی ماں روتی ہے, جب کوئی بہن روتی ہے اپنی مدد کے لیے, وہ پکارتی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو, تمام لوگوں کو کہ مجھے مدد کی جائے. آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ رنج و غم کا ماحول ہے, یہاں پہ ماتم چھایا ہوا ہے, یہاں کے تمام لوگ ان کے آس پڑوسی رشتہ دار ان کے غم میں شامل ہوئے ہیں, لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ آج گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں. آپ دیکھ لیجئے تصویریں, کتنی ہولناک تصویریں, کتنی دردناک تصویریں, جو انہوں نے پل کمایا تھا اس پوری زندگی میں, جو انہوں نے محنت مشقت کی تھی, وہ پل بھر میں راکھ کی ڈیر کیس لیورس دود مکسن ٹیسٹ کیا گو میں ریلس دس میں سارے بہت وچنس میں نو ٹریٹمنٹ کرن امس میں سارے 7 بین لوگ میں رۄپیہِ 2 لچھ لاگنہِ امس ؤرِیس خرچہ پرایویٹ علاج چلان امس 2 ؤرِیس گٔے مےٚ بوے کٲنٛسہِ 7 بیٚنہِ بہٕ رۄپیہِ ہتس پٮ۪ٹھ گژھان نوکری کرنہِ پرایویٹ سکولس پرناوان. ناظرین ان کا پاس بک اگر ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو تصدیق ہو جاتا کہ ان کا ہی اکاؤنٹ نمبر ہے, لیکن پاس بک بھی نہیں بچا. اب جو اکاؤنٹ نمبر ہم نے کیپشن میں دیا, آپ اس اکاؤنٹ نمبر پہ مدد کر سکتے ہیں. جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے, ہر ایک کی آنکھ نم ہے, ہر ایک
खून के आंसू रो रहा है। यहाँ पे माए मजी में वन इनके वती बच्चस बच्ची में अच्छा बच्ची से कहाँ गुजारोल कहाँ सा कहीं खाली बस बे जमीन ज़रात न बे बच ज़ बच्चे बे खानदारी ज़ बच्ची स्कूल या और ये वो नार इजहार गुमत एम कर मसा मसा बच्चो वन ये दरगाह मसा मसा बच्चो वन ये दरगाह बहन जी तुम थो थोड़ा हौसला इंशाल्लाह लूक कर मदद अशो उम्मीद अगर तुम हौसला थो अल्लाह खुदा सुन लाख लाख शुक्र कि कहाँ जानी नुकसान गो न मसा मसा बचन बच अंदर बे नोश अंदर कमरस मज अंदर किन गो सख मख गो नार जर गेसा दूध मसा कड़म बच अंदर बाकी कोड़म न कहें अकिस नश दोदम 2 लाख सनवास बीस लाख दोदम 2 लाख सनवास बच्चों पान लेखान लिखित पान शालस मज शाल कम कर तस गम शरियत शाल कम कर सोजा इन बचन 2 लाख रपी लगिस नमिस बच्चस अमिस लेवरस प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट्स कह चीज कह प्रॉब्लम सह मकल सोरी यह बच्चे अमिस नौतवान अमिस नड़ हज प्रॉब्लम अमिस तम 2 बच्चे अमिस द्राय न शौक रात अन स्टोर पे तमल 2 3 तुत आज कह स्टोर 2 3 तरह बस आज कह मुलजिमत न कह नौकरी न कह इनकम न चीज बचाओ न प्रत कह चीज न शौक न बचा न अगर पलो बचे न मे बचा नालन हूं पलो कह जवरात न कह नालुक पलो जन लागन मे बच सब नाजरीन दुख की बात दिल तार तार हो जाता है जब कोई इस घर का जो सदस्य है जिस पे इस घर की पूरी जिम्मेदारी थी या जिसने इस घर को बनाया था एक हाथ से यानी कि ये भाई जो आप मेरे साथ में देख रहे हैं जिनके हाथ में एक बच्चा है इसका एक बाजू काम नहीं कर रहा है बचपन से ये स्पेशली एबल्ड है और लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं ऐसे जवानों को जो जवान जिस्मानी तौर पर कमजोर होते हैं लेकिन फिर भी वो जिंदगी की जंग नहीं हारते वो जिंदगी की जंग लगातार लड़ते रहते हैं और इसने अपना आशियाना बनाया था और 2 भाई इस आशियाने में रहते थे लेकिन बदकिस्मती से कल गैस लीक होने की वजह से ये इनका आशियाना इनका मकान जलकर खाकिस्तर हुआ है। तलस मे वन कि तह कर पे दूध नड़ अच्छा बचपन पे जैन वोल कमान वोल कहीं तही करो मेहनत मेहनत थोड़ा बहुत वो क्या यसान क्या तु यसान कि लूग गसन मदद करें बिल्कुल क्या करो चीन का मदद गसन जरूरी करें चीन वो पान से सॉरी बिल्कुल प्रॉब्लम ना लूग दपन शायद अपुज वनान कि आपके हाथ में बच्चा है एक मिनट अच्छा ये नट से प्रॉब्लम यतीम काट माज मन काट खुदास बगैर मन ये सारा मकलिया इतन वरन हन जमा थोत मकलिया सारा बस इन करो मदद खुदास रजा करो मदद बस बेचने सोन मुताबिक बस इन करो हिम्मत इंशाल्लाह मदद। तो नाज़रीन यहाँ पे ये दिल तार तार हो जाता है और कलेजा फट जाता है जब ऐसी तस्वीरें हम दिखाते हैं। एक बहन रोती रहती है एक माँ रोती रहती है। बस ये आज आप लोगों से मदद की अपील करते हैं रो रो के चिल्ला चिल्ला के। अगर आज भी आपको इन माँ के इन आंसू की कदर नहीं है तो मैं कहूंगा कि ये इंसानियत नहीं ये हैवानियत है। कुछ भी यहाँ बचा नहीं है। ये बच्चा इनके घर में है ये भी बीमार है इसके जिगर में प्रॉब्लम है। अब ये पेशेंट था ये हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे अपने परिवार को चलाते थे लेकिन बदकिस्मती से आज इनका आशियाना ही जलकर खाकिस्तर हुआ। आज ये मोहताज हुए। आज ये सोशल मीडिया पर लोगों को भीख मांगने के लिए आए हैं। इसलिए मेरी भी आपसे मोहतबाना अपील है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जिस भी मुसलमान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है मैं चाहूंगा कि इंसानियत के खातिर इनको मदद की जाए। ये देख लीजिए इस बहन ने मुझे 2 सोने की अंगूठियां दिखाई। ये 2 अंगूठियां सिर्फ बची। आप देख लीजिए क्या हालत है। लगभग इन्होंने कहा कि हमारे पास सोना भी लगभग 2-2.5 लाख का था और कुछ कैश भी था वो सब जलकर खाकिस्तर हुआ है। यहाँ पे लगभग मैं कहूंगा कुल मिला के लाखों की मालियत का नुकसान हुआ है जो इन्होंने मजदूरी मेहनत मशक्कत करके बनाया था। कोई मुलाजिम इस घर में नहीं है
मजदूरी करके इन्होंने इस घर को बनाया था, इस आशियाना को बनाया था, लेकिन बदकिस्मती से आज यही जलकर खाकिस्तर हुआ। ये तस्वीरें ही बयान कर रही है यहाँ पे कि ये कितनी हौलनाक आग थी, कितनी डेंजरस ये आग थी, जिस आग ने इस मकान को पल भर में अपने लपेट में लेकर खाकिस्तर कर दिया। लेकिन मैं हुकामी बाला से दरखास्त करता हूं कि डिंगरी चैरकूट का रोड इतना खस्ता हालत में है, इस तरीके का रोड है कि जब फायर सर्विस की गाड़ी यहाँ पे आई कि वो इस घर तक पहुंच नहीं पाई, क्योंकि रोड बिल्कुल टाइट है, रोड बिल्कुल रोड कुशादा नहीं है, जिसकी वजह से ये मकान पूरा जलकर खाकिस्तर हो जाता। अगर यहाँ पे फायर सर्विस डिपार्टमेंट का अमला पहुंचता तो शायद ये घर जलने से बच जाता। मैं यहाँ पे एक मकामी लोग से बात करना चाहूँ, यहाँ के लोकल रेजिडेंट से मैं बात, वैसे मैं उनसे क्या दलील चाहती हैं जिस रोड फायर सर्विसेज आए मगर तुम हेक इथ योर की रोड बिल्कुल टाइट ये कहाँ जोर खोज कर यपर किन कदल ये मुज तान 3 जवान अत कदलस पे बोन गई कि कदल दिन की शॉर्टकट मेन रोड पे 3 जवान एम कदल पे गए 3 जवान मुज तान पले गई एम कदल खतर लोग डरना ये कदल यपर शॉर्टकट गई ये कदल मुज तान हपर किन हम साइड रोड एम मगर अपर की फायर सर्विस यतन वो ना 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 हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी हल्का चेरकूट तो हल्का डिंगरी लगा ये दोन हल्कन मज महदूद रोड डीसी लट गए वोट दी तमिस गो ना तमिस तपर किन गए इत पे गए ना 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 सारी सारी ना ना बहुत हल्को प्रेसिडेंट पदमे पे कि गई लट मगर अत हुकूमत दित साथ वो हुकूमत बनियाम आज गो ना तमिस नश यह कत गस तिमन तवन वातन कि यपर शॉर्टकट रोड इस बनपोरा हादसा गो अत शॉर्टकट निम कदल जरूरत यह हादसा गोमुत तेल की यह गई हपर हल हल पे फायर सर्विस यून यह योतान वात की यीस काल खत्म गो। तो मेरी मौजूदा सरकार से दरखास्त है कि इन लोगों ने वोट दिए हैं और वोट देके आप लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। क्या इसी के लिए आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाया है कि आज इनका मकान जल रहा था और फायर सर्विस का अमला वहां पहुंच नहीं पाया, क्योंकि रोड ही ऐसा है। हम नहीं कह रहे कि फायर सर्विस यहां पहुंचा नहीं, फायर सर्विस यहां पे पहुंचा था, लेकिन रोड इतना तंग है, रोड की वाइडनिंग इतनी कम है कि फायर सर्विस की बड़ी गाड़ी यहां पे पहुंच नहीं पाई। तो क्या फायदा हुआ? ये लोग कह रहे हैं कि जनाब हमने जो वोट दिया उस वोट का क्या फायदा। तो मेरी मौजूदा सरकार से मोतबाना अपील है कि इनके मसले पे नजरसानी की जाए। जो इनको यहाँ पे पुल का मामला है, जो इनको यहाँ पे रोड का मामला है, उस रोड और पुल के मामले को जल्द अज जल्द उस पे उसका अजाला किया जाएगा। और मेरी रिक्वेस्ट तमाम उम्मत मुस्लिमा से है, तमाम लोगों से है, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान हो, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आके इनकी मदद करे, चाहे आप 10 रुपए चाहे आप 5 रुपए मदद करें, ताकि ये फिर से एक बार जो है अपना आशियाना बना पाएंगे, जो आशियाना जलकर खाकिस्तर हुआ है। और इस मकान का जो ओनर है, जिसने इस मकान को बनाया था, वो खुद जिस्मानी तौर पर कमजोर है, उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा, एक हाथ की मजदूरी से इसने पेशेंट पेशेंट कुछ तो नाज़रीन यहाँ इनकी डिमांड है, मैं लाए हूँ, ये चाहते हैं इनके पास पेशेंट जो पिछले कई सालों से बेड में बैठा है, बिस्तर में बैठा है। मैं चाहूंगा कि लाइव में ही उनसे भी बात करूंगा, लेकिन जो भी हमारा वीडियो लाइव देख रहा है तो मेहरबानी करके आप इस वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि ये लोगों तक पहुंच जाए और इन लोगों को मदद पहुंच पाए। ये गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, तरह तरह की परेशानियों ने, या मैं कहूँगा मुसीबतों में ये इस वक्त इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये चीज अच्छा ये मकानस मन अमिस क्या मजिद वाल हम साइड
सुमनस में ये मकान दो ये तती रोजान बसनिक एक साइड जाए अकस बाथर इमिस यह पेतर यह नोतवान इमिस गई वारिया टाइम एक साइड जाए अह सहारा अम बगैर प्रॉब्लम यह गुमुत हैंग सो कुल पे योर दब लोगमुत यह हैंडीकैप अमिस गई 10-15 वुहर कमर एज गम ग्रेस अमिस सहारा नस पृछान न गारा बह आय पे जन हम कर हमसाय लरीज आय पे लरीज कर मे यह नबर कुन सहारा अमिस गई 35 वहरी 35 बिस्तरस में थे 35 वहरी खुदा सुन ताकत इस पीत पीत आना पे अमिस बस लागान कह सहारा बच अमिस जुटिश बे काकई मे मोन खानदार तक बहरियत ग पंजाब मम्मी 10 दिन और मैं आना लागन बचन। तो नाजरीन यहाँ पे दिल तार तार हो जाता है, कलेजा फट जाता है। इनका आशियाना ही नहीं जला बल्कि इनका लखते जिगर पिछले 35 सालों से ऐसे ही बिस्तर पे लेटा है। आप देखो तंगदस्ती की कैसी तंगदस्ती और बेकसी और बेबसी के हालात। एक तरह से इनका मकान जलकर खाकिस्तर हुआ, दूसरी जानिब से ये नौजवान इनका लगते जिगर पिछले 35 सालों से इसी बिस्तर में लेटा हुआ है। ये अब इसी को इलाजो मुआवजा के लिए अपनी जिंदगी की पूरी जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन आज एक तूफान आया। उस तूफान ने इनको आशियाना ही खाकिस्तर कर दिया। अब मैं चाहूंगा कि मैं इससे बात करता जरूरी, लेकिन पेशेंट से बात करूंगा मुनासिब नहीं है। ये अपने आप ही मुसीबतों और तंगदस्ती की जिंदगी जी रहा है, तो मैं इससे अगर और चंद सवालात पूछता तो मुझे लगता है कि ये ज्यादती है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है। और इस बहन जब से मैंने लाइव स्टार्ट किया तब से ये बहन रोती जा रही है और इस बहन के आंसू नहीं रुक रहे हैं। तो मैं नहीं ना रोज कह सुन ज्यादा सोच मकला सूरी शीरे खानदार नोतवान मैं क्या करूँ थोड़ा अल्लाह ताला दी हिम्मत करो, हिम्मत इंशाल्लाह करन लोग तो नाज़रीन मैं चाहूंगा कि मेहरबानी करके मैं भी आपके सामने हाथ जोड़ता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई अल्लाह का प्यारा इन लोगों की मदद करे तो ये लोग अपना आशियाना एक बार फिर से बना पाए और ये शख्स जो पिछले 35 सालों से बिस्तर में लेटा हुआ है ये इसका भी इलाज हो जाए, ये भी अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाए। आप दीजिए इजाजत अपने मेजबान वाहिद मसूदी को खुदा हाफिज। मैंने अकाउंट कैप्शन में ही दिया, उस अकाउंट पे आप डोनेट कीजिए या फिर हम इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे, सेल नंबर भी दे देंगे ताकि आप इनसे डायरेक्ट राब्ता करके अगर आप जिनसी कोई मदद करना चाहिए या कोई कैश में मदद करना चाहिए, कोई इनके लिए ईंटें, कोई सीमेंट, कोई टीन, कोई बाजरी, कोई कुछ भी डोनेट करना चाहेगा वो भी कर सकता है और कोई पैसा डोनेट करना चाहेगा वो भी कर सकता है। लेकिन अकाउंट नंबर इनका ये हम तस्दीक के लिए इनका सेल नंबर भी दे देंगे, आप उस पर राब्ता करके आप कंफर्म कर सकते, उसके बाद में आप डोनेट कर सकते हैं। आप दीजिए इजाजत अपने मेजबान वाहिद मसूदी को खुदा हाफिज।